معاشرتی تقسیم نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کو نقصان پہنچایا. سیاسی قوتوں کا مساق معیشت پر اتفاق کرائے وقت کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی دور میں قوم کو دھوکہ دیا گیا. دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والوں نے ملک کو کنگال کر دیا. کوئی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. آئیں مل بیٹھیں اور پاکستان کو عظیم ملک بنائیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دانش اسکول سے فارغ التحصیل طلبہ میں لیپ ٹاپس اور چیکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. آج اگر میں اس جگہ پر ہوں تو جسٹ ہمارے پی ایم آف دا پاکستان کی وجہ سے. میرے پیرنٹس نہیں تھے لیکن شاید میں دانش نہ ہوتا تو نہ پڑھ سکتی. میں نے سر کو ہمیشہ ایز اے فادر سمجھا ہے. آپ نے ہمیں وہ موقع دیا, آپ نے ہمارے اندر وہ ڈفرینسز ختم کیے. دیٹ ریچ اینڈ پور دیر از نو کنسیپٹ, everybody can compete. اگر میرا دانش اسکول میں ایڈمیشن نہ ہوتا تو میں آج کہیں پہ مزدوری کر رہا ہوتا یا کہیں پہ ہوٹل میں کام کر رہا ہوتا. دانش اسکولوں سے فارغ التحصیل طلبہ کے اعزاز میں تقریب میں جذباتی مناظر. میکینیکل انجینئر بننے والی مقدس ممتاز کنگ ایڈورڈ میں زیر تعلیم محمد علی لمز کی سمائزہ شہزادی. پنجاب یونیورسٹی تک پہنچنے والے لال چند کی بھرپور پذیرائی. شرکا کی نونہالوں کی کامیابیوں پر زبردست داد. وزیر اعظم شہباز شریف کی طلبہ و طالبات کی بھرپور حوصلہ افزائی. وزیر خزانہ کی زراعت اور تعمیراتی شعبے پر نئے ٹیکس عائد کرنے کی تردید. قومی اسمبلی میں میرے وضاحتی بیان کو غلط رنگ دیا گیا. لیٹر آف انٹینٹ میں جن ٹیکس اقدامات کا تذکرہ ہے وہ 30 جون تک لگائے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار. پیمرا ترمیمی بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی. میڈیا ورکرز کی تنخواہوں سمیت تمام حقوق کا تحفظ کیا گیا. گزشتہ حکومت میں پیمرا کو میڈیا کے خلاف استعمال کیا گیا. صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئیں. موجودہ قانون سازی سے آزادی صحافت اور صحافیوں کے حقوق کا تحفظ بہتر انداز میں ہو سکے گا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ایرانی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھناؤنے فعل کی شدید مذمت. اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے اور اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کو مزید فعال بنانے کے عزم کا اعادہ. بلاول بھٹو زرداری کا ترک ہم منصب سے بھی رابطہ. بحر اسود کے راستے اناج کی ترسیل کے معاملے پر گفتگو ہوئی. قطر کے شاہی خاندان کے بزرگ شیخ محمد بن حمد بن جامع الثانی کی نماز جنازہ دوحہ میں ادا کر دی گئی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا شیخ محمد بن حمد بن عبداللہ بن جاسم الثانی کے انتقال پر دکھ اور رنج کا اظہار اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت. قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور سوگوار خاندان سے اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. گورنمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین کا جناح ہاؤس کا دورہ. 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت. یہ گھر بابائے قوم محمد علی جناح سے منسوب ہونے کے باعث قابل قدر تھا. منظم سازش کے تحت یہ تخریب کاری کی گئی. شرپسند اور اعلی کار یاد رکھیں ایسی سازشوں سے فوج اور پاکستان کو کمزور نہیں کر سکتے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی پرتشدد کارروائیاں. کشمیری عوام خوف کی زندگی گزارنے پر مجبور. ایک ہفتے کے دوران درجنوں نوجوان جھوٹے الزامات میں گرفتار. کالے قوانین لاگو. بدنامی زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کا کشتواڑ میں حریت کارکن ریاض احمد کے گھر پر چھاپا. اہل خانہ کو ہراساں کیا. اہم دستاویزات قبضے میں لے لیں. مقبوضہ کشمیر میں انتہا پسند ہندوؤں کا معصوم کشمیری گھوڑی بانوں پر تشدد. امرناتھ یاترا کے دوران انتہا پسند ہندوؤں اور کشمیری گھوڑا بانوں کے درمیان لین دین پر جھگڑا ہوا. انتہا پسند یاتریوں نے مذہبی رنگ دے کر گھوڑی بانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا. امرناتھ تصادم مودی سرکار کے انتخابی فوائد کے لیے ہندو انتہا پسند جذبات کی سرپرستی کا نتیجہ ہے. تجزیہ نگار. پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج سے 29 جولائی کے دوران مزید بارشوں کا امکان. اسلام آباد اور راولپنڈی کے گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری. مری، اٹک، چکوال، جہلم اور ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع.
दरियाए रावी, दरियाए चनाब और दरियाए झेलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। पीडीएमए की सूबाई इंतजामिया को तमाम तर इंतजामात मुकम्मल रखने, अलर्ट रहने और दरियाओं के करीब इलाकों से शहरियों को महफूज मुकामात पर फौरी मुंतकिल करने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल में पीडीएमए की हेल्पलाइन 1129 पर राब्ता कर सकते हैं। तर्जुमान पीडीएमए। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की जारहत। सेहूनी फोर्सेस ने रमला में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों के खिलाफ मुजाहरा करने पर गोलियां चला दी। 2 फ़लस्तीनी शहीद। रवां साल अब तक 198 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बेलारूस को तन्हा ना समझा जाए। इत्तेहादी मुल्क के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत को रूस पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मॉस्को मुमकिना हमलों के खिलाफ बेलारूस की हिफाजत के लिए हर कदम उठाएगा। सदर व्लादिमीर पुतिन। पाकिस्तान के हमजा खान ने तारीख रकम कर दी। 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप टाइटल दिला दिया। मेलबर्न में इवेंट के फाइनल में हमजा खान ने मिस्र के मोहम्मद ज़िफिया को 3-1 से शिकस्त दी। 1986 में जान शेर खान ने ये टाइटल जीता था। और श्रीलंका में इमर्जिंग एशिया कप फाइनल में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स और भारत आज मद्दे मुकाबल होंगे। दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट। पाकिस्तानी शाहीन्स की फाइनल से कबल कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से मुलाकात। बाबर आजम ने नौजवान क्रिकेटर्स को मुफीद मशवरे दिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशरती तक़सीम ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफ़र को बहुत नुकसान पहुँचाया है। सियासी क़ुव्वतों का मीसाक़ मईशत पर इत्तेफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दौर में कौम को बेदर्दी से धोखा दिया गया, दूसरों को चोर डाकू कहकर मुल्क को कंगाल कर दिया गया। दानिश स्कूल्स के क़याम पर कहा गया कि शहबाज शरीफ पैसे ज़ाया कर रहा है। इकरामुल्लाह महसूद से तफसीलात जानिए। लाहौर में दानिश स्कूलों से फारिग तहसील तलबा और तालबात में लैपटॉप और चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दानिश स्कूल्स प्रोजेक्ट के इजरा के दौरान उन्हें बेतहाशा तनकीद का निशाना बनाया गया। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। दानिश स्कूल्स प्रोजेक्ट के सरमायाकारी के कामयाब मिसालें आज कौम के सामने हैं। जब मैंने दानिश स्कूल बनाने का फैसला किया था, अशराफिया ने भरपूर मुखालफत की, सरदारों ने बड़ी मुखालफत की, अमीरों ने बड़ी मुखालफत की कि शहबाज शरीफ दानिश स्कूल के ऊपर पैसे ज़ाया कर रहा है। मैंने कहा कि मुझे इनकी मुखालफत की कोई परवाह नहीं। जनूबी पंजाब के दूर अफ्तादा इलाकों में दानिश स्कूल हमने बनाए। अगर अल्लाह ताला ने हमें अगले इलेक्शन में मौका दिया तो पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूलों का एक जाल बिछा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी कुव्वतों का मीसाक़ मईशत पर इत्तेफ़ाक़ राय वक्त की जरूरत है। माशरती तक़सीम ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफर को बहुत नुकसान पहुँचाया। 15 माह में सैलाब से लेकर, महंगाई से लेकर, IMF से लेकर मुल्क के अंदर बदतरीन तकसीम का मुझे सामना करना पड़ा। आज मैं फिर कहता हूं कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, आए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए काम करें। आज हम मिल बैठकर अपने इख्तिलाफात दफन करके अगर हम एक हो जाएं तो फिर कोई मुश्किल, कोई रुकावट हमारे रास्ते की जंजीर नहीं बन सकेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तालीम और खेलों के मैदान में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले दानिश स्कूलों के तुलबा और तालबात में लैपटॉप और चेक्स तकसीम किए। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और नाज़रीन, दानिश स्कूल से फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात के एजाज़ में तकरीब जज्बाती रुख इख्तियार कर गई। नौनिहालों ने जब अपनी कामयाबियों का तस्करा किया तो शुरका दाद दिए बगैर न रह सके। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। 2010 में मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला
पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दानिश स्कूल्स का मनसूबा शुरू किया, जो दर हकीकत तालीम के शोबे में समाजी नाइंसाफ़ी के खात्मे के साथ मुस्तहिक और नादार बच्चों को म्यारी तालीम फराहम करने का इनकलाबी इकदाम था। 12 बरस पहले लगाया जाने वाला दानिश स्कूल्स का पौधा आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। इस वक्त 50,000 से ज़ायद तलबा व तालबात दानिश स्कूलों में ज़ेरे तालीम हैं, जो अपने ख्वाबों को अमली ताबीर दे रहे हैं। आपने हमें वो मौका दिया, आपने हमारे अंदर वो डिफरेंसेस खत्म किए, दैट रिच एंड पुअर देयर इज नो कॉन्सेप्ट, एवरीबॉडी कैन कम्पीट नो मैटर वेयर फ्रॉम यू बिलोंग। मेरा ताल्लुक दानिश बॉय स्कूल चिश्तियाँ से था और आजकल मैं चालिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ की मदद से मैं इस मकाम पर पहुँचा। मेरे पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन शायद मैं दानिश ना होता तो ना पढ़ सकती। लेडीज एंड जेंटलमैन, तानिया को प्राइम मिनिस्टर साहब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपकी भरपूर तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। दानिश स्कूल से तालीम के हसूल के बाद मैकेनिकल इंजीनियर बनने वाली मुकद्दस मुमताज़ हो, या किंग एडवर्ड में ज़ेरे तालीम मोहम्मद अली, लम्स की स्माइजा शहजादी हो, या पंजाब यूनिवर्सिटी तक पहुँचने वाला लालचंद, ये कामयाबियाँ इस बात का सबूत हैं कि ये वाकई सितारों से आगे हैं। 10 साल की उम्र में मैंने अपने वालिद साहब का साथ खो दिया। उस टाइम पर मेरी वालदा के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल टाइम था। 2022 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया और अब मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरे वालिद निजी बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड है। मैंने अपनी एफएससी पंजाब दानिश स्कूल से की और आज मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और दानिश स्कूल की वजह से मैं लम्स में मेरा एडमिशन हुआ। अगर मेरा दानिश स्कूल में एडमिशन ना होता तो मैं भी आज कहीं पे मजदूरी कर रहा होता या कहीं पे होटल में काम कर रहा होता। दानिश स्कूल में तरबियत हासिल करने वाले इन कामयाबी के सितारों को अपने दरमियान देखकर वज़ीर आज़म की आंखों में नमी दर हकीकत अल्लाह के हजूर शुक्र का मज़र है। वज़ीर आज़म ने इन बच्चों पर दस्ते शफ़क़त रखा और इनको प्यार किया। मेरा फ्यूचर क्या होना था? लाइक 30,000, 50,000 right now. I'm the CEO of this company where I'm sitting right now. This is all because of Danish. मैं जिस भी मुकाम पर हूँ सब कुछ दानिश स्कूल की बदौलत है। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जो कि हम जैसे गरीब फैमिली से आने वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। दानिश अगर ना होता तो मेरा एक अच्छे अदारे में तालीम हासिल करने का ख्वाब अधूरा रह जाता है। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बच्चों के साथ मिलकर मिली नगमा भी गाया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। कतर के शाही ख़ानदान के बुजुर्ग शेख मोहम्मद बिन हम्द बिन जासिम अल सानी की नमाज जनाजा गुज़श्ता शाम दोहा में अदा की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि शेख मोहम्मद बिन हम्द बिन अब्दुल्ला बिन जासिम अल सानी के इंतकाल की खबर सुनकर गहरा रंज हुआ। मैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्द अल सानी और सोगवार ख़ानदान से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसाक डार ने एक बार फिर ज़राअत और तामीराती शोबे पर अपने नए टैक्स आयद करने की इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में वजाहत का मकसद इस तासुर को ख़त्म करना था कि बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ मुआहदे के तहत हुकूमत ज़राअत और तामीराती शोबों पर नई टैक्स लगाएगी। इस वजाहती बयान को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि लेटर ऑफ इंटेंट में जिन टैक्स इक़दाम का तस्करा है वो 30 जून तक लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि पेमरा तरमीमी बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई। ये बिल सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि मीडिया और आवाम का है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में पेमरा को मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। मौजूदा कानून साजी से आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर अंदाज में हो सकेगा। मज़ीद जानिए मलिक उमर से। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दौर में हिज़्ब इख्तलाफ ने बदतरीन मीडिया सेंसरशिप का सामना किया। पेमरा कवानीन में तरामीम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि आइंदा कोई ना तो आज़ादी सहाफ़त पर कदगने लगा सके और ना ही मीडिया के नुमाइंदों के हुकूक गज़ब कर सके। हमने ये सेंसरशिप भुगती है, तो आज मुझे ना सिखाएं और मीडिया को ना सिखाएं और ना बताएं कि मीडिया सेंसरशिप क्या होती है। ये कानून है, आपके सामने है। ये मीडिया का बिल है, ये पाकिस्तान का बिल है, ये पाकिस्तान की आवाम का बिल है, जिसमें आज सहाफ़ियों के राइट्स महफूज हैं। ये PMDA की तरह एक दिन बाहर नहीं आया,
یہ 11 مہینے ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے ساتھ، UN کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی ان لائن ریزولوشن کے ساتھ یہ قانون جو ہے یہ بل کی شکل اختیار کی جو نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے قانون میں متعارف کرائے جانے والی ترامیم فرداً میڈیا کے نمائندوں کے سامنے پیش کی اور آگاہ کیا کہ فیک نیوز کی مبہم اصطلاح کو واضح کر دیا گیا ہے۔ جو فیک نیوز ہے وہ ایک امبریلا ورڈ ہے جس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ قانون میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن جو ان تمام میڈیا سٹیک ہولڈرز اور آرگنائزیشن کی معاونت سے اور رہنمائی سے ہم نے ڈفرینشیٹ کیا۔ وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ چیئرمین پیمرا کے اختیارات متعدد ارکان پر مبنی اتھارٹی کو تفویض کر دیے گئے ہیں، جبکہ 7 رکنی کونسل آف کمپلین میں میڈیا کے نمائندوں کی شمولیت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں قوانین پر بھی باقاعدگی سے نظر ثانی ہونی چاہیے۔ ہم مثبت تجاویز کو ہر وقت قانون میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبدالحیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھناؤنے فعل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات کو کسی بھی طور جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس طرح کے اسلاموفوبیا کے واقعات مذہبی عدم برداشت، نفرت اور اشتعال انگیزی کو ہوا دیتے ہیں۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے اور اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کو مزید فعال بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ترک ہم منصب حاقان فیدان کو ٹیلی فون کیا اور بحر اسود کے راستے اناج کی ترسیل کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ سال بحر اسود کی راہداری کے لیے ہونے والے معاہدے میں ترکیہ کے اہم کردار کو سراہا۔ انہوں نے معاہدے کی تجدید کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور کے نجی اسپتال میں ایک بچی نور فاطمہ کے دل کے کامیاب آپریشن کے بعد اس سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان نے نور فاطمہ کو تحائف دیے۔ محسن نقوی نے بچی نور فاطمہ کی مکمل صحت یابی اور اسپتال سے ڈسچارج ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بچی کی خوبصورت مسکراہٹ میں زندگی مسکرا رہی ہے۔ بچی کی والدہ نے بہترین علاج، معالجے اور دیکھ بھال پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور اسپتال انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ نور فاطمہ کے دل کے 2 وال بند تھے اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بچی کو نجی ہسپتال شفٹ کرنے کی ہدایت کی تھی جہاں مفت آپریشن کیا گیا ہے۔ ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد راولپنڈی میں گزشتہ رات سے 29 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کے باعث نالہ لئی میں بھی پانی کی سطح معمولی سے بلند ہوئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ رات سے 29 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کے باعث نالہ لئی میں بھی پانی کی سطح معمول سے بلند ہو گئی ہے۔ اور اگر بات کریں انتظامات کے حوالے سے تو وفاقی انتظامیہ کے احکامات پر فوری طور پر انتظامات کیے گئے ہیں اور نالہ لئی کے گرد و نواح میں بسنے والی آبادی کو محفوظ مقامات پر شفٹ کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اپنے تمام ناظرین کو بتاتے چلیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں گزشتہ رات سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور 29 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں گزشتہ رات سے 29 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کے باعث نالہ لئی میں بھی پانی کی سطح معمولی سے بلند ہو چکی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں گزشتہ رات سے 29 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کے باعث نالہ لئی میں بھی پانی کی سطح معمول سے بلند ہوئی ہے۔ کسی بھی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آبادی قریب ہے جو کہ قریب مقیم ہے نالہ لئی کے، ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا سکے۔ ابھی کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں گزشتہ رات سے وقفے سے تیز اور ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث 29 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کے باعث نالہ لئی میں بھی پانی کی سطح معمول سے بلند ہو چکی ہے، جس کے باعث انتظامیہ اس وقت ایکٹیو نظر آتی ہے اور نالہ لئی کے اطراف میں موجود آبادی کو محفوظ مقامات پر شفٹ کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی مشینری علاقے میں پہنچا دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون
कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी खड़े होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, तो उस हवाले से भी इंतजामात किए जा रहे हैं। और मुजम्मल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है वो बहुत ज़्यादा इक़दाम किए जा रहे हैं। जो भी लोग नाला लेक के करीब रहते हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जो भी करीब के इलाके हैं उनमें जो भी मकीन हैं उनको जल्द अज जल्द वहाँ से कहीं महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके ताकि इंसानी जानों को जो है वो महफूज बनाया जा सके। जैसे कि रात से हम देख रहे हैं कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और बारिश के बायस जो है वो नाला लई जो है उसमें मामूल से ज़्यादा पानी की सतह जो है वो बुलंद हो गई है। जी बिल्कुल अरूज, और इसी हवाले से अगर बात की जाए पूरे सूबे की ही बल्कि पूरे पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने की खुसूसी हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की थी कि जो भी इलाके इस हवाले से इफ़ेक्ट हो सकते हैं उनमें फ़ौरी तौर पर मशीनरी पहुँचाई जाए और जितने भी दरिया हैं जिनमें फ़्लड का ख़तरा ज़ाहिर किया गया है उनके अतराफ़ में भी जो आबादी मौजूद है उनको फ़ौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज की तालिबात और फैकल्टी मेंबरान ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया और सानह 9 मई पर सख्त गमोसे का इजहार किया। तफसीलात बताएंगे आयशा फयाज। गवर्नमेंट कॉलेज की तलबात और फैकल्टी मेंबरान ने जना हाउस का दौरा किया और सानहा 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ये बहुत तकलीफ दे लम्हात हैं। ये घर बाबाए कौम मोहम्मद अली जना से मंसूब होने के बायस काबिल कदर था। उन्होंने कहा कि बहैसियत तालिब इल्म और पाकिस्तानी होने के नाते हमें नौजवानों को नफरत की बुनियाद पर हर सियासत करने वाले अनासिर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। इट्स सो एम्बैरेसिंग कि हमारे अजीम लीडर की यहाँ पे बहुत सी निशानियाँ मौजूद थी जिसको जलाकर राख कर दिया गया। यहाँ पर मस्जिद मौजूद थी, उनको जला दिया गया। मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि इन सब के पीछे जिनका हाथ है उन सबको सख्त से सख्त सजा दीजिए। तालिबात ने कहा कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तहरीब कारी की गई है। शरपसंद और आलाकार याद रखें, ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकते। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और शरपसंद अनासिर की ऐसी कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करते हैं। बात का बहुत दुख हुआ कि हमारे जना हाउस को बुरी तरीके से जलाया गया और यहाँ हमारे कैद की पड़ी हुई चीज़ों को भी जलाया गया। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि यहाँ पर जो मस्जिद थी, जहाँ पे जो हमारी इबादत गाह है, उसको भी जलाया गया। हम इस बात की मजम्मत करते हैं। बहुत अफसोस हुआ है कि हमारे कायद आज़म की यादें थी यहाँ, वो सारी इन्होंने जलाई हैं और यहाँ पे मस्जिद भी हमने देखी है जिसे शहीद किया गया है और ये सब देख के हमें बहुत अफसोस हो रहा है और जिसने भी ये किया है उन्हें उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। तालिबात ने शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टरमाइंड के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि आइंदा कोई भी ऐसी तहरीब कारी का ना सोचे। आयशा फयाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सूबे सिंध के वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन ने ट्विटर पर अपने बयान में आवाम के लिए एक और खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि बसों की एक और खेप कराची पहुँच गई है। चंद दिनों में आवाम की सहूलत के लिए नए रूट्स शुरू किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नई बसों की आमद से आवाम को सफ़र करने में मजीद आसानी होगी। उनका मजीद कहना था कि अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें भी कराची पहुंचेंगी। ट्रांसपोर्ट के शोबे में सिंध हुकूमत के मिशन और आवाम के लिए पीपल्स पार्टी के वादों और खिदमात को आगे बढ़ाया जाएगा। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क को मुतादिद माशी मुश्किलात का सामना था, लेकिन हुकूमत की माशी टीम ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुश्किल और सियासी तौर पर गैर मकबूल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। इसी हवाले से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट देखिए। सियासत नहीं रियासत बचाओ बयानिए को लेकर जब मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने अप्रैल 2022 में इक़्तिदार संभाला तो मुल्क माशी तौर पर दिवालिया होने के करीब था। तिजारती खसारा हो या मालियाती खसारा, बैरूनी अदायगियों का तवाज़न हो या गर्दिशी कर्जों का बढ़ता हुआ बोझ, मुल्क को मुतअद्दिद माशी मसाइल का सामना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खराब माशी पॉलिसियों की वजह से माली साल 2022 में मालियाती खसारा 7.9% और करंट अकाउंट खसारा 4.6% पर पहुँच गया था, जबकि तिजारती खसारा 39 अरब 70 करोड़ डॉलर रहा। पीटीआई की गैर संजीदा रवैये की वजह से दोस्त ममालिक नाराज हुए और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बुरी तरह मुतासिर हुई। मौजूदा हुकूमत ने सनती तरक्की के लिए खाम माल की दरामद पर ड्यूटी को कम किया, जबकि कारखानों को बिला तात्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए। ज़राअत के शोबे की तरक्की मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसी का अहम महवर है। हुकूमत ने किसान पैकेज के तहत किसानों को सस्ते बीज, खाद और दूसरी मराद दी,
जिससे ज़राअत की पैदावार में इजाफा होगा। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए सूबों के साथ मिलकर इंतजामी और पॉलिसी सतह पर इक़दामात उठा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं और रवां माली साल के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 465 अरब रुपए किया गया है। मौजूदा हुकूमत ने दोस्त ममालिक और डेवलपमेंट पार्टनर के साथ भी बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए हैं, जिससे माशी बहाली में मदद मिलेगी। सियासी तौर पर गैर मकबूल और मुश्किल माशी इस्लाहात की वजह से मौजूदा हुकूमत ने बेपनाह सियासी नुकसान उठाया है, लेकिन मुल्क को माशी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन किया। मोहम्मद शाहिद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने मुल्क की मईशत को तबाह किया और तमाम तरक्याती मनसूबों को एक साजिश के तहत रोका। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि पिछली हुकूमत ने कौम से धोखा किया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI ने मुल्क में नफरत और इंतशार के कल्चर को फरोग दिया। जो तजर्बा इस मुल्क में हुआ, एक ऐसे शख्स को इस मुल्क में हुकूमत दी गई जिसने 4 साल सवाए नफरत, सवाए मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं फलां को जेल में डालूंगा, मैं फलां को ये करूंगा, और मां सवाए ओए तोए के कल्चर, बदतमीजी और झगड़े के, अफरा तफरी के, अनारकी के कोई काम नहीं किया। और फिर आखिर करते करते 9 मई को वो फिर खुद से ऐसा हादसा कर बैठा है कि अब उसकी जो है वो सजा भुगत रहा है। और नाज़रीन, PTI की विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। ननकाना साहब से तहरीक इंसाफ के ज़िलाई एडिशनल जनरल सेक्रेटरी महमूद भट्ट, शेख हाजी कुर्बान सेक्रेटरी इत्तलात और ज़िलाई रुकन मियां उस्मान इफ्तिखार ने भी PTI छोड़कर नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। शाहकोट के नवाई गांव कमालपुर मुस्लिम लीग नून पंजाब के सीनियर नायब सदर राना मोहम्मद अरशद ने कहा है कि जिना हाउस पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। राना मोहम्मद अरशद ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द ननकाना साहब आएंगे और मोटरवे इंटरचेंज समेत दीगर तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। और अब आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से बेगुनाह कश्मीरी घोड़ाबानों पर तशद्दुद का वाक़या पेश आ रहा है। आइन शाहिदीन के मुताबिक झगड़ा अमरनाथ यात्रा के दौरान इंतहा पसंद हिंदुओं और कश्मीरी घोड़ीबानों के माबैन लेन देन के मामले पर हुआ, जिसे इंतहा पसंद यात्रियों ने मजहबी रंग दे दिया। इंतहा पसंद यात्रियों ने मिलकर घोड़ाबानों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे 40 से ज़ायद घोड़ीबान जख्मी हुए, जबकि 300 खैमों और 10 बावर्ची खानों को भी आग लगा दी गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कश्मीरी घोड़ीबानों ने एहतजाजन यात्रियों की सवारी सर्विस मुअत्तल कर दी। इस दौरान पुलिस घोड़ीबानों पर तशद्दुद के दौरान खामोश तमाशाई बनी रही। तज्जिया निगार के मुताबिक अमरनाथ तसादुम मोदी सरकार की इंतखाबी फवाइद के लिए हिंदू इंतहा पसंद जज्बात की सरपरस्ती का नतीजा है। काबिज भारतीय फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर महास्टर तलाशी की कार्रवाई की वजह से कश्मीरी आवाम मुसलसल खौफ में मुब्तला है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा इलाके में श्रीनगर समेत मुख्तलिफ अजला में खौफ व हरास का माहौल है। भारतीय फौजी एहलकार घरों में घुस कर मकीनों को हिरासा करने के साथ अमला की तोड़ फोड़ करते हैं। भारतीय फोर्सेस ने एक हफ्ते के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में दर्जनों नौजवानों को झूठे इल्जाम पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफराद में से कई पर काले कवानीन लागू कर दिए गए हैं। भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकारों के साथ मिलकर ज़िला किश्तवाड़ के इलाके मरवा में हुर्रियत कारकुन रियाज अहमद के घर पर छापा मारा। उन्होंने हुर्रियत कारकुन के अहल खाना को हिरासा किया और घर के अहम दस्तावेजात को कब्जे में ले लिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में एक बयान में कहा है कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के एक मकतलगाह में तब्दील कर दिया है। भारतीय फौजी बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालिया 3 दिनों में जाली मुकाबलों में 9 बेगुनाह नौजवानों को कत्ल जाहिर कर दिया गया है। भारतीय फौज मुनज़्ज़म तरीके से कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। हुर्रियत रहनुमाओं ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो अपनी मुजरिमाना खामोशी तर्क करें और मकबूजा इलाके में होने वाले जराइम पर भारत को जवाबदेह ठहराए। हिंदुत्व के पैरोकार हिंदुस्तान से मसाजिद और मदारिस के मुकम्मल तौर पर खात्मे के दर पे हैं। अखंड भारत के क़याम के दाई मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को मसख़ करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। अब दिल्ली में मजीद 2 तारीखी मसाजिद को मस्मार करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। तफसील जानते हैं अब्दुल्ला शाद से।
बाबरी तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये हिंदू इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस का वो नारा है जिसके तहत वो हिंदुस्तान से गैर हिंदुओं का मुकम्मल तौर पर खात्मा करके इसे राम राष्ट्र में तब्दील करना चाहती है। अब दिल्ली में मजीद 2 तारीखी मसाजिद को फिलफौर खाली करने का हुक्म दिया गया है ताकि उन्हें भी नाम नेहाद तजावुजात मुहिम के नाम पर मिसमार किया जा सके। 250 साल पुरानी बंगाली बाजार मस्जिद और 400 साल पुरानी बाबर शाह तकिया मस्जिद की इंतजामिया को जगह खाली करने के लिए 15 रोज का वक्त दिया गया है। उधर वाराणसी की तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद को भी मिसमार करने की राह हमवार कर ली गई है। वाराणसी की अदालत ने हिस्बे साबिक मुसलमानों की दरख्वास्त खारिज कर दी। इससे कबल ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने से नाम नेहाद शिवलिंग की दरियाफ्त का ड्रामा भी रचाया जा चुका है। सैकड़ों मसाजिद की मिसमारी के बाद भी RSS का दावा है कि भारत से 36,000 मसाजिद और मदारस को मुनहदम करके उनकी जगह मंदिर कायम किए जाएंगे। मोदी राज में महज मजहबी अकलियतों ही नहीं बल्कि निचली जात के हिंदुओं की हालत भी बदतर हो चुकी है। अपने बुनियादी हकूक के हसूल के लिए निचली जात के हिंदू बरहना एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। रियासत छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर में दलितों ने असेंबली की तरफ बरहना मार्च किया। मार्च का मकसद ऊंची जात के जाली सर्टिफिकेट्स की बिना पर नौकरियां पाने वाले सरकारी मुलाजमीन को बर्खास्त करने का मुतालबा था। दूसरी जानिब बदतरीन खाना जंगी का शिकार मणिपुर में मुश्तिल खवातीन ने उन 2 मर्दों के घरों को आग लगा दी जिन पर खवातीन को बरहना हालत में परेड कराने का इल्जाम है। मणिपुर में महीनों से जारी ईसाई कुछ फसादात में अब तक कम से कम 120 अफराद हलाक हो चुके हैं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि सूबा पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और दरियाए रावी और चिनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। PDMA के मुताबिक दरियाए चिनाब और रावी में अगले 48 घंटों में पानी की सतह मजीद बुलंद होगी, जबकि दरियाए जेहलुम में भी दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। दरियाए चिनाब में मराला के मकाम पर 1,27,000 क्यूसिक जबकि खानकी के मकाम पर 1,30,000 क्यूसिक पानी का अखराज है और दोनों मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मुसलसल बारिशों से भारत के डैमों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है, जिसके पेश नज़र सूबा भर की इंतजामिया को इंतजामात मुकम्मल रखने और अलर्ट रहने के अहकामात जारी किए गए हैं। DG PDMA ने कहा है कि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। शहरी हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर राबिता करें। दूसरी जानिब PDMA ने सूबा पंजाब में 23 से 29 जुलाई के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। PDMA के मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जेहलुम और डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ भी लाहौर समेत सूबे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए थे। ताहम PDMA, वासा, ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1122 की टीमों ने बर वक्त निकासियाब का काम मुकम्मल किया। नाज़रीन, हेड बल्लोकी के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दरिया के करीबी इलाकों के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स भी लगा दिए गए हैं। तफसील जानते हैं, जावेद अहमद माविया हमें ज्वाइन करेंगे हेड बल्लोकी से, उनसे जानते हैं। जी जावेद अहमद माविया, आगाह कीजिएगा, पानी की क्या सूरत हाल है और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों और भारत की तरफ से अजाफी पानी छोड़े जाने के बाद दरिया रावी में हेड बल्लोकी के मुकाम पर पानी की सतह में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त जहां से 64,540 क्यूसेक जो है वो सैलाबी पानी का जो रेला जो है वो गुजर रहा है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे की वजह से पानी जो है वो दरिया के बेल्ट के अंदर जो मुख्तलिफ आबादियां हैं वहाँ पे जो फसलों को उसने नुकसान पहुंचाया है। जिली इंतजामिया की तरफ से किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और जिला भर में मुख्तलिफ मुकामात पर जो है 5 फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो लगाए गए हैं, जहां पे रेस्क्यू 1122 महकमा से रेवेन्यू और दो दीगर महकमों के एहलकार हैं वो 24 घंटे ड्यूटी के फराज अंजाम दे रहे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से जो है वो खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जिली इंतजामिया का कहना है कि वो किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए हमा वक्त जो है वो तैयार है। जहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दरिया रावी में हेड बल्लोकी के मुकाम पर 3,80,000 से ज्यादा जो है वो पानी जो है वो यहाँ से गुजर सकता है और महकमा इरिगेशन का ये कहना है कि अभी वक्त हालात जो है वो मुकम्मल कंट्रोल में और किसी भी हंगामी सूरत की उम्मीद नहीं है। जी
بہت شکریہ جاوید احمد ماویہ، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور ناظرین مزید آپ کو بتائیں کہ مانسیرہ شہر اور گرد و نواح میں بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ وادی کاغان، وادی سرن اور ملحقہ علاقوں میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ دریائے کنہار اور ندی سرن میں بھی پانی کے بہاؤ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ وادی کاغان میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سیاحوں کی رہنمائی اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنے اسٹاف کو مشینری کے ساتھ مختلف مقامات پر تعینات کیا ہے۔ ناظرین یہاں رخ کریں گے گلگت بلتستان کے ضلع گانچے کا، جہاں بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی سے رابطہ سڑکیں، کھڑی فصلیں اور بڑی تعداد میں درخت تباہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سیلابی صورتحال کی تفصیلات کے لیے گانچے سے محمد علی عالم کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ضلع گانچے میں گزشتہ 3 روز سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث مختلف علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی سے متعدد رابطہ سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں۔ سوغا میں دریائی کٹاؤ سے رابطہ سڑک بلاک ہو گئی ہے۔ سیلاب سے علاقہ کندوز کی رابطہ سڑکیں بلاک، سلطرو اور برغار میں کھڑی فصلیں اور درختوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تھگس نالے میں سیلابی ریلے سے رابطہ پل بہا لے گیا۔ سڑکوں کی بندش سے مقامی لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق آفات میں کہیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور رابطہ سڑکوں کی بحالی کے لیے محکمہ تعمیرات عامہ کا عملہ مشینری کے ذریعے کام کر رہے ہیں۔ محمد علی عالم، پی ٹی وی نیوز، گانچے۔ ناظرین محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، خطہ پٹوار سمیت پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر، شمال مشرقی، جنوبی پنجاب، خطہ پٹوار، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور سندھ میں موسلا دھار بارش کی بھی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خطہ پٹوار، اسلام آباد، پنجاب، سندھ، شمال مشرقی، جنوبی بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ بعض مقامات پر موسلا دھار بارش بھی ریکارڈ کی گئی۔ اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ دالبندین میں 44، نوکنڈی میں بھی 44، نواب شاہ 40، سکھر 39، جبکہ دادو میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین یہ تھی موسم کی صورتحال، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ شکریہ قاسم۔ ناظرین موسم کی کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں گزشتہ رات سے 29 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کے باعث نالالئی میں بھی پانی کی سطح معمول سے بلند ہوئی ہے۔ تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ ہمارے نمائندے حسن طارق بٹ وہاں پر موجود ہیں۔ حسن آپ بتائیے گا بارش کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور انتظامات کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، جڑواں شہروں میں آج صبح سے جو ہے وہ بارش جو ہے وہ جاری ہے وقفے کے ساتھ۔ اس وقت جو ہے وہ بارش تھم گئی ہے، تقریباً آن ایوریج 21 ملی میٹر جو ہے وہ جڑواں شہروں میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بعض مقامات پر 29 ملی میٹر تک جو ہے وہ بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ چکلالہ کے مقام پر 29 ملی میٹر، شمس آباد کے مقام پر 26 ملی میٹر، اسی طرح پی ڈبلیو ڈی کے مقام پر 21 ملی میٹر، اور اور یہ جو مین بیسن ہے جس کو ایوریج کہا جاتا ہے وہ تقریباً 21 ملی میٹر جو ہے وہ بنتا ہے، تو یہ 21 ملی میٹر جو ہے وہ بارش ہوئی ہے۔ اس کے باعث جو ہے وہ نالالئی جو ہے اس کے اندر پانی کی سطح بھی ہے وہ معمول سے زیادہ ہے، مگر اس وقت حالات جو ہے جو صورتحال ہے وہ آلموسٹ معمول کے قریب ہی ہے۔ تقریباً 6 جو ہے وہ فٹ پانی ہے شمس آباد کے مقام پہ، اسی طرح راولپنڈی میں گوال منڈی کے مقام کے اوپر نالالئی میں جو پانی کی سطح ہے وہ تقریباً 5 فٹ ہے، 5-5.5 فٹ، اور اس وقت کوئی جو ہے وہ پریشان کن جو ہے وہ صورتحال نہیں ہے۔ جو واسا کا عملہ ہے انہوں نے جو ہی بارش تھمی ہے فوراً وہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور انہوں نے سارے کا سارا پانی جو نشیبی علاقوں سے پمپس اور ہیوی مشینری کے ذریعے سارے کا سارا پانی جو ہے وہ بھی نکال لیا گیا ہے اور کسی بھی جگہ بس بھی نہیں کھڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو واسا کا عملہ ہے ان کی چھٹیاں بھی جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ جی صحیح، شکریہ حسن طارق بٹ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خیبر پختونخوا کی محکمہ ریلیف نے ڈپٹی کمشنر اپر اور لوئر چترال کی درخواست پر تیز بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ سیکرٹری محکمہ ریلیف عبدالباسط کے مطابق ایمرجنسی کا نفاذ 15 اگست تک ہوگا۔ حالیہ بارشوں سے چترال میں تباہ کاریاں ہوئی ہیں، جہاں پر لوگوں کے گھر، باغات، دکانوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ علاقے میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے سڑکوں کے ذریعے رابطے منقطع ہو گئے ہیں۔
सऊदी वजारत हज और उम्रा का कहना है कि सऊदी अरब के शहरी अब बैरून मुल्क मुकीम अपने मुसलमान दोस्तों को ज़ाती वीज़ा विजिट वीज़ा पर उम्रे के लिए मदऊ कर सकते हैं। वजारत हज और उम्रा ने ट्वीट में कहा है कि ज़ाती वीज़ा ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है, जो सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री हो सकते हैं। इसके तहत मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के अलावा ज़ायरीन सऊदी अरब के मुख्तलिफ सियाहती मकामात का भी दौरा कर सकते हैं। ज़ाती विजिट वीज़ा के लिए दरखास्तें सऊदी वजारत ख़ारजा के वीज़ा प्लेटफॉर्म के जरिए दी जा सकती हैं। चीन के शुमाली और बस्ती इलाकों में शदीद बारिशों के नतीजे में कई सूबों में सैलाब आ गया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक सूबा होपी के नशेबी इलाकों में सैलाब आ गया, जहां 200 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जियानिंग शहर में एक बस सैलाबी पानी में फंस गई। इमदादी कारकुनान ने बस में फंसे अफराद को निकाला। सूबा लियाओनिंग में सड़कें ज़ेर-आब आने से शहरी घरों में महदूद होकर रह गए। मौसमी आफात ने अप्रैल के महीने से चीन को अपने लपेट में ले रखा है, जिससे अमवात हुई हैं और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचा है। भारत की मगरबी रियासत महाराष्ट्र में मिट्टी का तोदा गिरने से हलाकतों की तादाद 26 हो गई है और मजीद दर्जनों अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। भारत के डिजास्टर रिलीफ हुकाम ने बताया कि महाराष्ट्र में लैंडस्लाइडिंग के वाक़े में हलाकतों में इजाफा हुआ है और मलबे के नीचे मजीद अफराद दबे होने का खदशा है। एक बस्ती में लैंडस्लाइडिंग की जद में आई थी, जिसके सैकड़ों मकानात तबाह हो गए थे। लैंडस्लाइडिंग के बाद अब तक 80 अफराद लापता हैं। गुज़श्ता रोज़ मलबे से मजीद 4 लाशें निकाली गईं। इलाके में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे इमदादी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। यूनान के एक जजीरे में आग लगने के नतीजे में बड़े पैमाने पर मकामी आबादी का इनखला जारी है। गुज़श्ता रोज़ 30,000 अफराद को यूनानी जजीरे रोडस में भड़कती आग से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जिनमें 2,000 को कश्तियों के जरिए दूसरे मकामात पर ले जाया गया है। आग लगने की वजह से कुछ सड़कें बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग पैदल जाना पड़ रहा है। दूसरी जानिब यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में पड़ने वाली गर्मी ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। दीगर आम खबरों में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बेयकीनी और अदम तसलसल मईशत के लिए जहर कातिल है। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहादी हुकूमत की काविशों का महवर इक़्तिसादी इस्तेहकाम है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ये अमर खुश आइंद है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बड़ी हद तक इस अमर का इदराक है कि माजी की गलतियों को ना दोहराया जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 9 मई के वाक़यात से हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची। कौमी सलामती के ज़ामिन पाक फौज की तनसीबात पर हमले और मुल्क के लिए अपनी जान के नजराने देने वाले शोहदा की यादगारों की बेहुरमती किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ उलमाए कराम ने डेरा बुक्टी में हुर्मत कुरान रैली निकाली। रैली में उलमा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर वाक़े के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका से मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि स्वीडन के घटिया इक़दामात से कुरान की अज़मत में कोई कमी नहीं आएगी। कुरान इल्हामी किताब है और अल्लाह ताला ने खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा उठाया है। कोई भी इसकी अज़मत में कमी नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मंडी बहाउद्दीन में 20 बेड्स पर नई मेडिकल इमरजेंसी फंक्शनल कर दी गई है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च का कहना था कि जिला मंडी बहाउद्दीन के अवाम को सेहत आमा की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी जिला हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। नई मेडिकल इमरजेंसी की मंजूरी चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने अपने दौरे मंडी बहाउद्दीन के मौके पर दी थी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब सेहत के शोबे में मिसाली काम कर रही है। सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए तमाम जरूरी अद्वियात और तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान इनकलाबी ज़रई तब्दीली की तरफ गामज़न है। मुल्क को ज़रई तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाने के लिए इनकलाबी मनसूबा तश्कील दिया गया है। फोन ग्रो पाकिस्तान के ज़रई शोबे में पायदार मुस्तक़बिल की ज़मानत साबित होगा। पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में एक पायदार मुस्तक़बिल 2022 में कायम किया गया फोन ग्रो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के लिए कामयाबी से सरगर्म अमल है। हमारा मिशन है बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट फार्मिंग को मुतारिफ करवाना और एक वैल्यू एडेड एग्रो इकोसिस्टम बनाना, ताकि हाई टेक ज़रई सहूलियात और जदीद तरीकों से भरपूर फायदा उठाया जा सके। फ्रंट लोडेड हाई टेक फार्मिंग मैकेनाइजेशन के जरिए हम पैदावारी सलाहियत के एक नए दौर की जानिब बढ़ रहे हैं, जहां ज्यादा और मुनाफा बख्श पैदावार यकीनी बनाई जाती है।
फोन ग्रो नाम है एक जदीद निजाम का जो मियारी बीजों और बेहतरीन आपाशी में जिद्दत के जरिए पैदावार हासिल कर रहे हैं। हमारा अज़्म है कि तमाम किसानों के साथ एक राब्ता कायम करके उन्हें ताउन मुहैया किया जाए ताकि उन्हें वो जदीद तकनीक फराहम की जा सके जो बहुत अहम है आज के ज़रई मंजरनामे में तरक्की हासिल करने के लिए। जिद्दत है हर तरक्की का राज। फोन ग्रो टेक्नोलॉजी के जरिए जदीद ज़रई तकाज़ों को पूरा करने के लिए हर दम कोशां है। बीरूवल फार्म खानेवाल में फलती फूलती लहलहाती ज़रई सनत है जो फोन ग्रो की कामयाबी का एक मुंह बोलता सबूत है। जदीद काश्तकारी के मेयार को अपनाते हुए ये मुकम्मल तौर पर अपनी नौयत का पहला फार्म है जो खानेवाल में 2250 एकड़ पर फैला हुआ है और जिसको 5 साल में 1 लाख एकड़ तक फैलाने का मंसूबा भी तश्कील दिया जा चुका है। पाकिस्तान ज़राअत के लिए एक मौजूद तरीन सरजमीन है। ये मुल्क एक इनकलाबी ज़रई तब्दीली की तरफ गामज़न है और एक अजीम तरक्की के लिए तैयार है। आइए मिलकर इस तरक्की का हिस्सा बने। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी नथिया गली समर कॉलेज ऑफ फिजिक्स और असरी ज़रूरियात ख़त्म हो गया है। तफसील जानते हैं सदफ अफजल से। 48वें बैनुल-अक़वामी नथिया गली समर कॉलेज की इख्तितामी तकरीब से खिताब में PAEC के मेंबर साइंस डॉक्टर मसूद इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने मुल्क के अंदर बुनियादी इल्म और उभरती हुई टेक्नोलॉजी दोनों को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल कोशिशें की हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साइंसी तरक्की के हसूल और उसके मौसर इस्तेमाल को तरजीह देनी चाहिए। जो 5 एक्टिविटीज़ हमने सेलेक्ट की थी उसमें प्लाज्मा फिजिक्स था, सेमीकंडक्टर, पल्स पावर, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ और हाई एनर्जी फिजिक्स। इसका मेन मकसद ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, साइंटिस्ट हैं, वो आएँ पाकिस्तान और पाकिस्तान के साइंसदानों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें। This is the first time I visit Pakistan. This is beyond my expectation. अमरीका, बरतानिया, चीन, रूस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की समेत तरक्की याफ्ता ममालिक के 30 माहिरीन ने अहम मौज़ूआत पर लेक्चर दिए। तकरीब के इख्तिताम पर उम्दा कारकर्दगी दिखाने वालों को शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स दिए गए। ये समर कॉलेज मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, नथिया गली। नाजरीन, यजीदियत का फ़लसफ़ा इक़्तिदार और हाकमियत है, जबकि हुसैनियत का फ़लसफ़ा दीन मोहम्मदी की खातिर उठ खड़े होना और किसी भी कुर्बानी से दुरेग न करना है। वक़ार हैदर की रिपोर्ट देखिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ इन अल्फाज से कराया, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब अगर बादस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का सरचश्मा ज़ाते हुसैन को करार दिया जाए तो बेजा न होगा। यजीद ने खिलाफत राशिदा की इक़दार को पामाल करके इसे बदतरीन मलूकियत, सिफाकियत, आमरियत और दहशत गर्दी से बदल दिया तो हुसैन इब्ने अली ने अपने नाना के दीन की खातिर अलम बुलंद किया। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद ताहिर कहते हैं, फलसफा हुसैन और यजीदी फलसफा को समझने की जरूरत है। वाक़या करबला के पस मंजर में यजीद की सोच और फिक्र ये थी कि ताकत ही हक है। हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की सोच और फिक्र ये थी कि ताकत हक नहीं बल्कि हक का अलम जिसने लिया हो वही ताकतवर है। इन दो फलसफों के टकराव ने उम्मत मुस्लिमा और आलम इंसानियत को ये बात समझा दी कि वाक़या करबला के नतीजे में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होकर भी जिंदा है, जबकि यजीद तख्त बचाकर भी मुर्दा हो गया। हुसैन इब्ने अली खिलाफत राशिदा के असल और हकीकी इक़दार के अमीन, मुहाफिज और वारिस थे। इमाम अली मुकाम खिलाफत राशिदा की इक़दार को दोबारा जिंदा करना चाहते थे और इन इक़दार पर उम्मत का मुस्तकबिल संवारना और उस्तवार करना चाहते थे। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, लकड़ी के फर्नीचर के हवाले से चिन्नौट के कारीगर पूरी दुनिया में अपना मुनफरिद मुकाम रखते हैं। चिन्नौट में 200 साल कदीमी ताज़िया लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्नौट से राना आरिफ। अगर लकड़ी के ताजिए की बात की जाए तो 1854 में चिन्नौट के माहिर कारीगर
میاں محمد عبداللہ نے ٹھٹا محمد شاہ کے لیے تیار کیا تھا، جس کا وزن 120 من اور اس کی اونچائی 50 فٹ تھی۔ 50 افراد اس کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ ہر 10 محرم الحرام کو مکمل تعزیہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں نکالا جاتا ہے۔ اس کا وزن تقریباً 120 من ہے، 45 فٹ اس کی ہائٹ ہے اور 50 بندے اس کے مل کو اٹھاتے ہیں۔ 200 سال قدیم تعزیے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوئے ہیں۔ چنیوٹ میں یوم عاشور پر مختلف برادریوں کی جانب سے حضرت امام حسین کی یاد میں لکڑی کے 9 سنہری رنگ کے تعزیے نکالے جاتے ہیں، جن میں 2 تعزیے بہت ہی مشہور ہیں۔ ایک تعزیہ استاد کا، دوسرا شاگرد کا ہوتا ہے۔ ان لکڑی کے تعزیوں کو بڑی خوبصورتی سے تیار کیا جاتا ہے۔ رانا عارف، PTV نیوز، چنیوٹ۔ ناظرین، پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ لاکھوں زائرین کو سہولیات کی فراہمی اور سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مزید جانیے منیر احمد کی رپورٹ میں۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس مبارک جاری ہے۔ انتظامیہ نے بہشتی دروازے کی تقریبات کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ ہم نے مکمل طور پہ 3 کلومیٹر کی ریلنگ، گراؤٹنگ، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے چونکہ ہارش کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں، تو میں نے شامیانے 3 کلومیٹر پہ لگا دیے ہیں۔ پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ فل پروف سیکیورٹی کو انشور کر رہی ہے۔ ہمارے 500 پولیس اہلکار 24/7 ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپریشنل روم میں تقریباً 224 کیمرہ جات نصب کیے گئے ہیں پورے شہر میں اور روٹس پر، اور ان کی مسلسل مانیٹرنگ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اقبال سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور بہشتی دروازہ 5 محرم کو نماز عشاء کے بعد کھولا جائے گا۔ منیر احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پاک پتن۔